Our today's session that we have just joined for is on COVID. The topic is everything to know to fight COVID. So, with us joining us today for this live is Dr. Rumel Tikku. He is Director Internal Medicine, Max Super Speciality Hospital, Saket. Thank you so much, sir, for joining us for this live. Thank you for inviting me. It's my honor to be here. कोविड एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, हम सबको पता है, बट अब कोविड का जो सेकेंड वेव आया है, जो नया वेव शुरू हुआ है, that is sort of people are scared, people are worried because from where we started in 2020, I think we are sort of there again where there is a rise in cases. So, Dr. Tikku, what is your take on the second take of COVID? Well, it happens like that. We've seen it happening all over the world. It has happened in Europe. It has happened in US. They're still struggling. Now the numbers have gone down and India is lagging behind, I think, by 3-4 months. And we were always talking about a second wave. In all the pandemics till now, there's always been a second wave, and which is more harsh. So we had to be extremely careful, but unfortunately, people have become very complacent because in the last 2-3 months, we've had a declining trend in the numbers. And the fact that now vaccination drive has started. So the ones who are getting vaccinated actually feel that they're protected. It gives them a false sense of security. But you have to understand that vaccines are not foolproof. I mean, no vaccine can give you 100% protection. And the ones who had just one shot, they are anyway not protected. You have to take 2 shots and post 2 weeks, you actually get protection. And even then you can get it. So one of the reasons is the fact that people are no more wearing a mask, they're not maintaining social distance, they're not washing hands, they're partying, they're celebrating, everything. Economy had to start, it has started, but there's more travel happening, more leisure travel happening, more parties happening, and that has led to a spike. And the other reason is the mutant strain. That is something which happens with most of the viruses. That the mutation has happened, the double mutant strain in India and the UK strain, the Brazilian strain, the South African strain, these strains which are mutants actually tend to make them more infective in certain cases, and even the fatality can be high. I mean, the disease can get more severe. So the present wave which we are seeing is partly because of the mutant strain. But till now, fortunately, it seems to be very infectious because there's been an exponential rise in the number of COVID patients all over India. It's happening all over. It started with Maharashtra, but now it's all over the place. I mean, yesterday, we've had 128,000 cases in India, 55,000 in Maharashtra, now 5,000 in Delhi. And things are going bad to worse. And we have to learn from the other countries, and we have to keep doing what we are doing, basically, which is taking precautions. And the moment you step out of the house, you have to wear a mask. It shouldn't be hanging on your neck. It shouldn't be below your nose. And people who can work from home should work from home. There's no need to go out unnecessarily. There's no need to go for shopping. There's no need to go to the mall unnecessarily. Anyway, there's a curfew now, night curfew in Maharashtra, Delhi. So one has to be very careful. The ones who are eligible for vaccination, 45 and above, they should get vaccinated. And there's no difference in the 2 vaccines. They should get vaccinated. We hear a lot about the side effects, but over almost 8 crore people have been vaccinated in India, and most of the healthcare workers, and we haven't had any issue. I've had Covishield, there's been no problems at all. And the only way you can actually handle this pandemic and reduce the numbers, the severity, the mortality is by getting people vaccinated, majority of the people, which is again a humongous task for a country like India with 1.3 billion people. So even if you inoculate majority of the patients, which is people, which is basically maybe 70-80 crores, that's also going to be difficult, but the government is at it now. They've increased the numbers, 20, 30, 40 lakh people are getting vaccinated every day. The aim target is to make it 50 lakhs per day. And there'll be more vaccines coming in, but what I would advise people is to be very, very careful, wear a mask and follow all the norms. People are saying there are new strains, symptoms अलग these days in terms of COVID? जो है नया स्ट्रेन है उसके तो सिम्टम्स तो वही हैं, बट वेरी करते हैं. कुछ लोगों में माइल्ड सिम्टम्स हैं मगर फिर भी लंग इन्वॉल्वमेंट है. कुछ लोगों में एक्सटेंसिव पहले से एग्रेसिव है डिजीज, 2-3 का फीवर है और फिर उन्हें लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाती है. बट अभी तक जो हमने देखा है ये स्ट्रेन
है तो इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा, बट बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा डेथ्स नहीं हो रही है कंपेयर टू द फर्स्ट वेव. बट यस, इट कैन हैपन. अगर दोबारा म्यूटेशन होगी या कुछ और चेंज हो कैरेक्टर वायरस का, तो सीवियर डिजीज भी हो सकती है, ज़्यादा जाने भी जा सकती हैं. बट अभी तक लकीली फॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है. बट हाँ, कुछ केसेस में जिन्हें बहुत ही माइल्ड सटल सिम्टम्स हैं, उनका जब स्कैन करते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट है. सो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम स्ट्रेन टू स्ट्रेन, एंड इंडिविजुअल की कितनी इनेट इम्यूनिटी है उस पर भी डिपेंड करता है. तो अगर हम बात करें जैसे जो राइज इन केसेस है, कुड यू एक्चुअली पिन पॉइंट अ फ्यू रीजंस के इतना ज्यादा सडन राइज, इफ देयर इज अ स्टीप इन द नंबर ऑफ केसेस, व्हाट कुड बी द मेजर कॉजेस ऑफ दिस स्टीप? I mentioned it earlier, the causes are same. One, the fact that people are not following any norms, that there's too much of travel happening, transport system is in full flow, people are celebrating, partying, holidaying, they're not wearing masks. That is one of the main reasons. Apart from the fact that जो नेचर है वायरस का वो ऐसा ही है, म्यूटेशन जब भी होगी तो नंबर्स बढ़ेंगे. ये होता है, जो यूके में हुआ है, वहाँ पर दिसंबर में अचानक 50-60 हज़ार लोग दिन में इन्फेक्ट हो रहे थे, वो ही इंडिया में भी हो रहा है. ये न्यूयॉर्क में भी हुआ है, ये ब्राजील में भी हुआ है, साउथ अफ्रीका में भी हुआ है. जब भी म्यूटेशन होगी, कैरेक्टर चेंज होता है वायरस का, तो नंबर्स बढ़ जाते हैं. सो वो एक मेन रीजन है यहाँ पर. उसके अलावा यही कि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं नॉर्म्स. बाकी तो कोई मेन रीजन अभी तक मेरी नज़र में ऐसा कुछ है नहीं. देखिए, पिछले 3 महीने में भी केसेस बहुत कम थे, ऐसा कुछ डिफरेंट तो तब हो नहीं रहा था, तब भी ऐसे ही था. बट अब अचानक जो केसेस बढ़ रहे हैं वो म्यूटेशन से ही लग रहा है बढ़ रहे हैं. और इसमें लोगों को, बट ये कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ कि लोग अचानक उनको लग रहा है कि अब वैक्सीन भी लग रही है और नंबर्स भी कम है, तो अब जरूरत नहीं है हमें लेने. दोनों चीजें जब एक साथ होती हैं तो नंबर्स बढ़ जाते हैं. बट ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है. दोनों, ये सारी दुनिया में हुआ है, हर कंट्री में हुआ है. ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं इसके कारण ऐसा हो रहा है. गलत हम एक ही चीज कर रहे हैं कि हम फॉलो नहीं करते हैं नॉर्म्स. मास्क वगैरह जो सिंपल चीज है, सबसे सिंपल चीज है मास्क. अगर हम एक क्लॉथ मास्क या सर्जिकल मास्क जो 10 रुपए का है वही लगा लें ढंग से पूरा दिन, जब भी हम बाहर निकलते हैं, तो आपको कोविड होने के चांसेस बहुत कम है. बट ये सिंपल चीज भी लोग नहीं करते और वो कॉज ढूंढने चले हैं, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. समझना होगा क्यों हो रहा है और उसको फिर क्या है उसका प्रिकॉशंस वो लेने होंगे. अगर हम वो करेंगे तो आई एम श्योर केसेस इतनी तेजी से बढ़ेंगे नहीं. बढ़ेंगे भी तो फिर भी कम बढ़ेंगे, या आपका वायरल लोड कम होगा अगर आपने मास्क पहना है. अब वैक्सीनेशन ड्राइव इतनी चल रही है, 2-4 महीने में और भी बहुत करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगेगी. तो यही हमारा अंदाजा है कि धीरे धीरे कम हो जाएगा. बट अभी तो पीक पे है. कल हाईएस्ट नंबर्स थे इंडिया में आज तक के पिछले 1 साल में. सो इस टाइम पे तो वन हैज टू बी वेरी 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 केयरफुल. So we've just received a question. एक सवाल जो हर कोई एक डॉक्टर से पूछना चाहता है कि क्या जो कोविड की वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्या उनको कोविड होने के चांसेस कम है या नहीं हो सकता? What is your take on that? चांसेस तो कम ही है, बट हो तो सकता है. देखिए, जब कोविड की जो कोविशील्ड है उसके 2 शॉट्स हैं और कोवैक्सीन के भी 2 शॉट्स हैं. 2 शॉट्स के 2 हफ्ते के बाद आपको एक्चुअली प्रोटेक्शन मिलती है कंप्लीट. वो भी 100% नहीं है, फुल प्रूफ नहीं है. जो एफिकेसी होती है एक वैक्सीन की, जैसे कोविशील्ड की एफिकेसी जो ट्रायल्स में हुई थी वो थी अराउंड 70% और कोवैक्सीन की अराउंड 80% है. सो विच मीन्स जो 30% कोविशील्ड के बचे हुए या 20% कोवैक्सीन के बचे हुए उनको फिर भी हो सकता है. So that's what you mean by efficacy. That 70% means 70% लोगों को नहीं होगा, 30% लोगों को वैक्सीन लेने के बाद भी हो सकता है. But the saving grace is कि अगर उनको होगा तो उनकी माइल्ड डिजीज होगी, इतनी सीवियर डिजीज नहीं होगी that they develop pneumonia, respiratory failure and they need hospitalization. So होने को हो सकता है. हमने केसेस देखे भी हैं अभी रिसेंटली जिन्हें हुआ है पिछले 1 महीने में वैक्सीनेशन के 2 डोज के बाद भी उन्हें हुआ है. बट वो तो होता ही है, कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेशियस नहीं है. जी, तो सर जैसे हम बात करें अबाउट कोमॉर्बिडिटीज, सो नाउडेज देयर सबके मन में ये डर है कि जिनको ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं, जैसे हार्ट कंडीशन हो गई, डायबिटीज हो गई, फॉर देम वैक्सीन इज नॉट अ सेफ बेट. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, सर? वैक्सीन इज एक्चुअली मेंट फॉर सच पीपल
कोमॉर्बिडिटी जिनको भी उन्हीं को तो देना होता है, वो तो हाई रिस्क होते हैं फॉर कॉम्प्लिकेशंस। मोर्टेलिटी जो हो रही है इंडिया में अभी तक हुई है, वो 88% मोर्टेलिटी इज इन 45 एंड अबव। दैट इज द रीजन 45 एंड अबव को क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं। उससे पहले 45 प्लस कोमॉर्बिडिटीज को क्यों प्रायोरिटी मिल रही थी? क्योंकि इन लोगों में ज्यादा चांसेस है निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, मोर्टेलिटी होने का। सो ये तो हाई रिस्क ग्रुप है, इनको तो पहले लगेगी, और लगी भी है इनको पहले। सो इनमें डरना कि नहीं लगाना है, वो नहीं करना है, तो वो तो उनको अपने डॉक्टर से बात करनी होगी, समझना होगा। खुद डिसाइड नहीं करना है कि हमें डायबिटीज है, हमें तो नहीं लगेगी, हमें हाइपरटेंशन है, आपको तो जरूरी लगानी ही लगानी। 2-4 चीजें हैं वो जो आपको ध्यान में रखनी है वैक्सीन से पहले। अगर आपको डायबिटीज है, वो अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर है, वो अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए। एक्टिव कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, फीवर नहीं होना चाहिए। और जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं या ब्लड प्लेटलेट्स कम हैं, उन्हें अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। जिन्हें एलर्जीज हैं वो भी ले सकते हैं वैक्सीन, बट जिन्हें बहुत सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एनाफिलैक्सिस या सीवियर एलर्जी हुई होगी पास्ट में, उन्हें अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। प्रिकॉशंस लेके उन्हें भी वैक्सीन लग सकती है। प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं या ब्रेस्ट फीडिंग जो कर रही है, उन्हें नहीं लगेगी, उन्हें नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा सब लोगों को लग सकता है। आपको किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, आप कैंसर पेशेंट हो, आप इम्यूनोसप्रेस्ड हो, आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो, आपको तो लगनी ही लगनी है, आप तो हाई रिस्क हो। सो आपको अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लेनी चाहिए और वैक्सीन लेना चाहिए। बहुत ही कम रीजंस हैं कि आपको वैक्सीन नहीं लगेगी, जो मैंने बताया आपको 2-4। सर जैसे अभी बैचेस में लोगों को हर सिटी में आप देखोगे कि कोविड की वैक्सीन के बैचेस ओपन हो रहे हैं, लोग कोविड की वैक्सीन ले रहे हैं। कोविड वैक्सीन लगाने के बाद बहुत लोगों को सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, बेसिकली बॉडी एक कोई होता है, कोई फीवर होता है। सो इज दैट समथिंग कि अगर आपको वैक्सीन लगाने के बाद सिम्टम्स दिख रहे हैं तो मतलब आप पे वैक्सीन काम कर रही है, या इट्स व्हाट इज योर मतलब व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? बिकॉज़ देखिए साइड इफेक्ट्स तो हर वैक्सीन के होते हैं, दीज आर कॉमन साइड इफेक्ट्स। इनोकुलेशन 2-3 दिन तक आपको फीवर आ सकता है, हेडेक, बॉडी एक, लाइट हेडेडनेस, चक्कर आना, ये सब तो बहुत कॉमन है। पेन होना जहाँ पे आपको वैक्सीन लगाया, आर्म में पेन होना, नमनेस होना, हैवी होना, रेडनेस होनी, ये सारी कॉमन चीजें हैं। और इसका ये भी एक इनडायरेक्ट तरीका होता है जानने का कि एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया आपकी बॉडी में। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। उसमें आपको पैरास्टामोल की टैबलेट लेनी है अगर फीवर, बॉडी एक हेडेक होता है, वो नॉर्मली लास्ट नहीं करता है 2-3 दिन से ज्यादा। अनयूजुअल केसेस में जो हमने देखा है इस बार हो रहा है 5-7 दिन, 10 दिन भी फीवर हो रहा है, तो उसके लिए कुछ घबराने की बात नहीं, कुछ करना नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। अगर 2-4 दिन से ज्यादा हो फीवर तो एक बार डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। मे बी देयर इज सम अदर रीजन फॉर फीवर, मे बी इट्स नॉट द वैक्सीन, कोई और इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, या आपको शायद पहले ही कोविड था फिर आपने वैक्सीन ली तो एक्टिव हो गया। सो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट 2-3 दिन 4 दिन फीवर है तो इग्नोर करना है, पैरासिटामोल लेना है। उससे ज्यादा है तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। So when we talk about post-COVID recovery एक ऐसी चीज है जिसके बाद लोगों ने बताया कि उनको कोविड हुआ, उनकी सांस फूलने लगी, उनको रिकवरी में टाइम लग गया। आफ्टर सिम्टम्स बोलो तो अगर हम बात करें तो आफ्टर पोस्ट रिकवरी सिम्टम्स, तो सर कोई ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स है जो आप देना चाहेंगे टू कोविड पेशेंट्स हु हैव रिकवर्ड टू बी सेफ फ्रॉम, टू बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दोज पोस्ट रिकवरी सिम्टम्स? पोस्ट कोविड सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो फटीग है, थकी फीलिंग, वो सभी को ऑलमोस्ट होती है, वो 2-3 महीने तक हो सकती है। कुछ लोगों में उससे ज्यादा सिम्टम्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जैसे एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेसिव टेंडेंसी हो जाती है, पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, सांस फूलता है, सीढ़ी चढ़ते हैं, एक फ्लोर चढ़ते ही चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो जाता है, सांस फूलने लगता है, ब्रेन फॉगिंग हो जाती है, थोड़ा याद नहीं रहता है, मेमोरी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, या लेग्स में पेन हो रहा है, बैक एक हो रहा है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, टिंगलिंग, नमनेस इन आर्म्स, लेग्स, ये सब तो हो सकता है, बहुत से लोगों को होता भी है, जो लास्ट करता है फ्रॉम 1 month to say 3 months to very very rarely say 6 months. So उसकी भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। जो भी दवाई उनको लेनी है, विटामिन सप्लीमेंट्स हो या पेन रिलीफ के लिए हो या नींद, इंसोम्निया इज वेरी कॉमन, नींद नहीं आती बहुत लोगों को, तो नींद नहीं आएगी, वैसे ही थके रहेंगे, फटीग बहुत कॉमन है। अंडरलाइंग जो उनके डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, मे बी वो एक्टिवेट हो गया है। बहुत लोगों को कोविड के बाद बीपी बहुत हाई होता है,
सो ब्लड प्रेशर चेक करें, मे बी दवाई को ऊपर नीचे करना होगा. सो और पोस्ट कोविड वन हैज टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग एक्सरसाइज. जो लोगों को जिम जाने की आदत है या बहुत रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग, जॉगिंग करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, उन्हें ध्यान रखना होगा. बिकॉज टेंडेंसी होती है कि जब आप ये सब एरोबिक्स या कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है. सो उससे कभी कभार कोई इवेंट हो सकता है. कुछ रिपोर्ट्स हैं जो यंग लोगों में डेथ हो गई है, सडन डेथ बिकॉज ऑफ दिस. So rigorous exercise, extensive exercise, immediately post recovery from COVID should be avoided. और धीरे-धीरे gradually, maybe you can start after a month and brisk walk of half an hour and then gradually 2-3 महीने तक मेरी advice यही है कि take it easy, have good sleep, eat a good balanced diet, take adequate rest, do yoga, do meditation, स्ट्रेस फ्री रहो. अल्कोहल मत लीजिए बहुत ज्यादा. अगर आप लेते हैं तो occasionally a drink or two should be fine. Smoking करते हैं, you should have to get rid of that habit. It's one of the worst habits you can have. So these are my tips for post-COVID. So there's a lot of news floating around. सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, कि जो नया वायरस का स्ट्रेन है, it is more deadly for the children, for kids. Is that true in any sense? It's not more deadly, but yes, there seems to be an increase in the number of children who are getting infected. So because infectivity ज़्यादा है, तो टेंडेंसी है बच्चों में पहले ज़्यादा केसेस नहीं थे, अब लग रहा है कि ऐसा उन्हें भी हो रहा है. तो वो ये डेडली तो नहीं है, ये नहीं कह सकते, बट क्योंकि ये स्ट्रेन इन्फेक्टिव है, ये सभी को इन्फेक्ट करेगा. बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सबको. यंग लोगों में जो टेंडेंसी है ये सोचने की कि हमें होगा तो हम ठीक हो जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमें कुछ नहीं होगा, वो थोड़ा गलत सोच है. बिकॉज इस बार जो देखा गया है, यंगर जनरेशन जो है, यंगर लॉट जो है, विच इज अप एंड अबाउट, जो काम पे जाते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, जो घर से निकलते हैं, उन्हें ज्यादा हो रहा है. उन्हें ज्यादा हो रहा है और वो ही घर आके वो बाकी लोगों को देते हैं. सो जो घर पे बैठे हैं, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या वल्नरेबल जो हैं, उनको फिर कोई फायदा नहीं होता. बिकॉज वो तो पूरा दिन घर पे रहते हैं और शाम को जो घर पे आते हैं वो उनको देखेंगे. सो जो यंग लॉट है, उन्हें, यंगर लॉट है, उनको ये ध्यान रखना होगा कि आप तो ठीक हो जाओगे, बट शायद आप और किसी को वायरस दे दोगे, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है. एंड इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी योर फैमिली, इट कुड बी एनीबॉडी. सो बी केयरफुल, वेयर अ मास्क, फॉलो ऑल द गाइडलाइंस व्हिच द गवर्नमेंट हैज गिवन, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट एवरीवन एल्स. So डॉक्टर, जैसे हमने अभी बात की कोविड इन किड्स, सो पोस्ट रिकवरी ऐसे क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि जिस बच्चे को अगर कोविड हुआ हो तो उनके पेरेंट्स क्या चीजों का ध्यान रख सके सो दैट दे रिकवर बेटर? न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होगा और उनको कुछ सप्लीमेंट्स देने होंगे. बच्चों में ज्यादा दवाइयां वगैरह देते नहीं. इवन ड्यूरिंग कोविड यू डोंट गिव देम एंटीवायरल मेडिसिन, स्टफ लाइक दैट, एंटीबायोटिक्स. यू यूजुअली गिव देम पैरासिटामोल, जिंक बेस्ड विटामिन्स. सो उसी का ध्यान रखना होगा. खा पी रहे हैं ठीक से, अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार चेक करा लेना चाहिए उनका. कुछ बच्चों में एक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है जो देखा गया था सबसे पहले यूके में और अभी भी देखा जा रहा है बच्चों में. इट्स अ रेयर थिंग बट इट हैपेंस टू चिल्ड्रन और वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग होती है बीमारी है. वो एक कॉम्प्लिकेशन है कोविड. सो वन हैज टू लुक फॉर इट. अगर बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है, अगर उसको फीवर हो रहा है, वो ड्राउजी है, उसको रैशेस हो रहे हैं, यूरिन पास नहीं कर रहा है, हेडेक्स हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करना चाहिए. बिकॉज दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड दैट वी आर सीइंग इन चिल्ड्रन. आई एम नॉट अ पीडियाट्रिशियन बट आई हर्ड इट फ्रॉम द पीडियाट्रिशियंस कि क्या हो रहा है बच्चों में. सो पोस्ट कोविड बी इन रेगुलर टच विद योर पीडियाट्रिशियन सो दैट दे कैन गाइड यू कि आगे क्या करना. So is vaccine as safe for kids as it is for adults? See, अभी किड्स के लिए तो अप्रूव्ड है नहीं वैक्सीन, बिकॉज ट्रायल्स जो हुई है वो 18 एंड अबव के लिए हुई है. बच्चों की जो ट्रायल्स है वो चल रही हैं अभी. सो भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसमें ट्रायल्स हो रही हैं बच्चों में. और इवन यूएस में जो फाइजर है, मॉडर्ना है, उसकी भी ट्रायल्स चल रही हैं बच्चों में. सो उम्मीद यही है कि अगले 6-8 महीनों में इस साल बाय द एंड ऑफ द ईयर वी विल हैव अ वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन. As of now, there is no vaccine for children. We don't know how safe, efficacious it is in them. अभी ट्रायल्स चल रही हैं. जब उसका डेटा आएगा तब वो रिव्यू होगा, डेटा तब अप्रूव होगा. अभी के लिए तो 18 एंड अबव के लिए, इंडिया में 18 एंड अबव के लिए ही है अप्रूव वैक्सीन, बच्चों के लिए.
So sir, we've just received a question. The question is, हमारी एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा है, उनका नाम है अपेक्षा. She is asking कि अगर कोविड वैक्सीन के फर्स्ट डोज को लेने के बाद अगर उनको कोविड हो जाए तो उसके कितने टाइम बाद सेफ है उनका सेकंड डोज लेना? See, आइडियली तो आपको डिपेंड करता है आपको कौन सी वैक्सीन लगी है. अगर आपको कोविशील्ड लगी है तो नाउ द इंडियन गाइडलाइंस आर कि 6 to 8 वीक्स के बाद आपको सेकंड शॉट लेना. सो अगर आपको लगी है पहले तो आप उसको फॉलो कर कीजिए 6 to 8 वीक्स, प्रेफरेबली 8 वीक्स पे लीजिए, क्योंकि अगर आपको रिसेंटली हुआ है कोविड तो आपको वैसे ही थोड़ी सी इम्यूनिटी मिल गई है, थोड़ी प्रोटेक्शन, एंटीबॉडीज बन गई है. तो जितना आप डिले करोगे उसको उतना बेटर है. सो 6 वीक्स की जगह आई वुड से 8 वीक्स पे लीजिए. सो जो अदरवाइज हमारी जो गाइडलाइंस है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जिन्हें कोविड हो चुका है उन्हें एटलीस्ट 1 month पोस्ट कोविड दे शुड बी टेकिंग द शॉट, which basically means कि रिकवरी के 2 to 4 वीक्स के बाद कभी भी वो ले सकते हैं वैक्सीन. बट ऐसा मेरा मानना है कि 2-3 महीने तक तो प्रोटेक्शन होती है. सो अगर फॉर सम रीजन उनको नहीं मिल रही, वो एलिजिबल नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन को मिलती है. बट आइडियली जो भी गाइडलाइंस हैं 6-8 वीक्स या वैक्सीन पोस्ट 4 वीक्स उन्हें लगा लेनी चाहिए. फिर भी जस्ट गेट इन टच विद योर डॉक्टर. अगर कोई कंफ्यूजन होगी इस डेट पे लगी है, सेकंड इस डेट पे लगनी है, नहीं लगनी, यू कैन क्लैरिफाई. जैसे कि आजकल सब वैक्सीन लगवा तो रहे हैं, बहुत लोग हैं वो जैसे ही वैक्सीन के 2 डोज लगते हैं वो अपने एंटीबॉडीज टेस्ट कराने का, चेक कराने का, टेस्ट कराने लगते हैं कि कितनी एंटीबॉडी जनरेट हुई है. तो सर वो सही टाइम पीरियड क्या है बॉडीज में एंटीबॉडी जनरेट होने का कोविड वैक्सीन के बाद? देखिए, आपको आइडियली चेक करनी चाहिए पोस्ट 2 वीक्स ऑफ द सेकंड शॉट, 2 to 4 वीक्स पोस्ट द सेकंड शॉट ऑफ वैक्सीन. तो वही राइट टाइम है पता करने का कि आपको कितनी एंटीबॉडीज बनी है. उससे पहले पूरा प्रोटेक्शन आपको मिलता नहीं है. देखिए, एंटीबॉडीज हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोविड नहीं है, ये भी आपको समझना होगा. जस्ट बिकॉज आपको 2 शॉट्स मिले हैं, आपने एंटीबॉडीज चेक किए हैं, 2 वीक्स हो गए, आपकी एंटीबॉडीज काफी ज्यादा है, सो आप मास्क उतार के घूमने लग जाओ. सो ये नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद भी हमने देखा है पेशेंट्स को जिन्हें हुआ है. सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर वैक्सीनेशन स्टेटस आपको करते रहना है जो आप अभी तक करते आ रहे हो, क्योंकि जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं कुछ वैक्सीन उनके अगेंस्ट काम नहीं करती. सो इसलिए वो री इन्फेक्शन के चांसेस अब ज्यादा होंगे. जो पहले बहुत रेयर था अब थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा री इन्फेक्शन, क्योंकि ये स्ट्रेन शायद स्किप करेगा उसको, वैक्सीन को भी और इम्यूनिटीज को भी. और जो एंटीबॉडीज बन गई हैं वो शायद उस पर्टिकुलर स्ट्रेन के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होंगी. So, irrespective of your vaccination status, just keep doing what you're doing. You are still vulnerable. So, जैसे कि आपने अभी री इन्फेक्शन की बात करी, बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर एक बार कोविड हो गया तो वापस कोविड नहीं हो सकता या उसके चांसेस बहुत कम हैं. तो सिवियरिटी क्या हो सकती है री इन्फेक्शन वाले केसेस में? देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर आपको पहले हुआ है तो सेकंड टाइम आपको बहुत ज्यादा सीवियर होगा, या आपको पहले हुआ है तो सेकंड टाइम आपको कुछ नहीं होगा. ऐसा कुछ है नहीं. इट वेरीज. आपकी इनेट इम्यूनिटी कितनी है, आपको पहली बार कैसा इन्फेक्शन हुआ था, आपकी एंटीबॉडीज कितनी है, आपकी कोमोर्बिडिटीज कितनी है, आपकी एज क्या है, आप मेल हो फीमेल हो. मेल्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. सो देयर इज अ लॉट टू इट. एक रीजन नहीं है इसके इम्यूनिटी का. तो कुछ लोगों में देखा जाता है जिन्हें पहली बार माइल्ड था, जिनको हुआ है उनको सेकंड टाइम सीवियर होता है, और जो जिनको पहली बार सीवियर था उनको माइल्ड होता है. बट वो एंटीबॉडीज कितनी हैं, किस स्ट्रेन के अगेंस्ट काम कर रही हैं, देयर इज अ लॉट टू इट. सो अगर आपको पहले हुआ है, दूसरी बार आपको सीवियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट. तो सर, जैसे हर्ड इम्यूनिटी की बात पहले बहुत जोरों शोरों से होती थी व्हेन इट केम टू कोविड, बट हर्ड इम्यूनिटी की बातें हम लोग ने ना कभी इन्फ्लुएंजा के लिए की, ना कभी वायरल इन्फेक्शंस के लिए की. सो व्हाई इज इट सो मच टॉक्ड अबाउट इन टर्म्स ऑफ कोविड? So herd immunity का ये मतलब है when majority of your population, which is around 60 to 70% population, gets either naturally infected or is vaccinated and develops immunity to the virus, so that you develop a sort of a protection against the virus. जब majority लोगों को infection होता है antibody, तो virus को वो cycle break करने के लिए मिलता नहीं है, because it comes across people who are already immunized or had an infection in the past.
So it's not able to break that. So when 60 to 70% of the people either develop natural infection or are vaccinated, so herd immunity develop ho jati hai, which means the majority of the people have antibodies and the virus can't break through and infect more and more people. And that's when the pandemic will end, for us at least, or for all over the world. But for us to reach a herd immunity of 60 to 70%, we have to be very aggressive with the vaccination. Natural herd immunity है when naturally infection हो जाए, but उसमें जान जाने का खतरा, because वो बीमारी है. Vaccination will not kill, but COVID can kill. So that's not the way to get immunity. हो रहा है तो हो रहा है, but हमें जो अपनी तरफ से herd immunity reach करने के लिए करना है वो है aggressive vaccination, जो हम कर रहे हैं. और हमारी गवर्नमेंट बहुत कीन है, अभी बहुत पर्टिकुलर एग्रेसिवली कर रही है, फेजेस में कर रही है. पहले हेल्थ केयर वर्कर्स से, फ्रंट लाइन वर्कर्स से, फिर 60 एंड अबव थे, फिर 45 comorbidities थे, 45 and above. And sooner or later there will be younger people who will get the vaccine. So to reach herd immunity, we have to be very aggressive with the vaccine. There should be no vaccine hesitancy at all. ये सोचना कि ये सेफ नहीं है और इससे एफिकेसी नहीं है, ऐसे ही कम हो रहा है, हमें हमारी इम्यूनिटी तो ठीक है, हमें कुछ नहीं होगा, तो ये गलत सोच है. बिकॉज जितनी जल्दी हम हर्ड इम्यूनिटी रीच करेंगे उतनी जल्दी विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ दिस वायरस. So when we talk about COVID, कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में हम लोगों ने 2000 पहले जब COVID एकदम स्टार्ट हुआ था, पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, it was all about washing your hands properly, sanitizing your hands, जिसके बारे में पिछले कुछ टाइम से थोड़ी अवेयरनेस लोगों में शायद से कम हो गई है, हम बोल सकते हैं, शायद इसीलिए केसेस बढ़ रहे हैं या जो भी रीजन हो. So what is your take on properly maintaining hygiene in terms of hand washing and sanitization? There's a sense of fatigue which is set in. You've been doing what you were never used to do. In my experience, people don't even wash hands before eating food in it, majority of them. So all of a sudden they've been told कि तुम्हें दिन में 10 बार हाथ साफ करने हैं, मुंह को हाथ नहीं लगाना है, नाक को हाथ नहीं लगाना है, आँख को हाथ नहीं लगाना है, किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले हाथ साफ करने हैं. So this is a concept which is alien to people in India. Hygiene is not our strongest point. So, but fortunately or unfortunately, that's how we've learned इस कोविड पैंडेमिक से कि सफाई कितनी जरूरी है. सो हाथ तो साफ करनी है. हाँ, थोड़ा सा लोग परेशान हो गए, थक गए, प्रैक्टिकल नहीं है दिन में 10 बार हाथ धोना और हर चीज को हाथ लगा के हाथ धोना. बट दैट्स द वे इट इज. अगर आपको बचना है इस बीमारी से, अगर आपको लोगों को बचाना है, अपने घर पे बचाना है, बच्चों को, बड़ों को, तो आपको ये सब करना होगा. हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो फोमाइट्स होते हैं, जो सरफेसेस होती हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं वायरस से, उन्हें हाथ लगाने के बाद जब आप अपने फेस को हाथ लगाते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम द सोशल डिस्टेंसिंग कि कोई खांसेगा, छींकेगा और अगर आप 6 फीट की डिस्टेंस में हैं तो आपको इन्फेक्शन होगा. और मास्क पहनना तो है ही सबसे इम्पोर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हैंड वॉशिंग और जनरली भी हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पर्सनल हाइजीन, रोज नहाना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ साफ करने चाहिए, वॉशरूम यूज करने से पहले, बाद में हाथ अच्छी तरह से साफ करने चाहिए. दिस शुड कम नेचुरली टू अस. इट्स नॉट बिकॉज कोविड है इसलिए हमें हाथ धोने और बाकी टाइम हमको हाथ नहीं धोने. सो अब आदत बना लेनी चाहिए सबको कि अब सफाई रखनी चाहिए, हाथ साफ करनी चाहिए. जस्ट इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ. अगेन जैसे हम लोग बात कर रहे हैं हाथ धोने की और हाथ धोने के बारे में हम लोग ने बात की, सैनिटाइजेशन के बारे में बात की, कितना जरूरी है सर्फेसेस को सैनिटाइज करना. जो हम लोग कपड़े पहन के आते हैं बाहर से अपने घरों के अंदर, उसको सैनिटाइज करना. जो सामान हम मार्केट से लेके आते हैं उसको सैनिटाइज करना. देखिए, एक बहुत कॉमन तरीका नहीं है ये इन्फेक्शन होने का. जो भी अभी तक रिसर्च हुआ, दीज आर नॉट द कॉमनेस्ट सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन. अभी तक जो सबसे कॉमन सोर्स वो यही है कि अगर कोई आसपास आपके हो, खांसे, छींके, मेजॉरिटी 90% से ज्यादा इन्फेक्शन उसी से होती है. बट क्योंकि रेयरली होते हैं इन्फेक्शन फोमाइट से, सरफेसेस से, जो पैकेट्स, पार्सल्स आप जो मंगाते हो घर पे, कुरियर वगैरह, खाना मंगाते हो, उसका आउटर सरफेस को आपको वेट वाइप से या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से साफ कर लेना चाहिए. अगर आप कर सकते हैं साफ उसको तो वो बेटर होगा. और जो सरफेसेस घर में है उन्हें तो नॉर्मल सफाई करनी होगी. बट हाँ, जिस घर में कोई आइसोलेशन में है, कोविड पॉजिटिव है, तो उसे तो सैनिटाइज करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, स्पेशली वंस द इन्फेक्शन इज ओवर. अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए. बट ये जो चीजें हैं कि जो ग्रोसरी आती है, दवाइयाँ आती हैं या पार्सल्स आते हैं या सरफेसेस से उतना ज्यादा इन्फेक्शंस नहीं होते.
और ज़्यादा टाइम वो लास्ट भी नहीं करते हैं सरफेसेस। तो बट अगर हम सफाई रखें, क्लीन करें, प्रिकॉशन ज़्यादा लें तो देयर इज़ नो हार्म। तो हम वैसे भी कम करते हैं रिस्क को इन्फेक्शन को। क्लीन करते रहें, बट यस इतना पूरा फोबिया नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ में वायरस है, ऐसा नहीं होता है। रेयर चीज़ें जिनसे होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हमारा आखिरी सवाल है। जैसे आपने बोला अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट और वरी इन पीपल कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को इतना स्किन पे लगाने से कैन इट अफेक्ट द हेल्थ? नॉट एट ऑल इफ इट्स एडल्ट्रेटेड, देन अदरवाइज जो नॉर्मल अच्छे ब्रांड्स हैं या जिसमें सिर्फ अल्कोहल ही है 60%, तो उससे तो कुछ नहीं होगा अनलेस यू आर एलर्जिक। कुछ लोगों को एलर्जी होती है टू द इंग्रेडिएंट्स, उन्हें रैशेस हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, उन्हें अवॉइड कर लेना चाहिए। उन्हें नेचुरल सैनिटाइजर्स यूज करने चाहिए, हर्बल भी होते हैं कुछ सैनिटाइजर्स। सो अदरवाइज मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मेजर साइड इफेक्ट इन यूजिंग सैनिटाइजर्स। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप साबुन से हाथ धो लें, साबुन पानी से 20 सेकंड तक रब करें हैंड्स अच्छी तरह से हाथ धोने, दैट शुड बी द आइडियल वे। सैनिटाइजर्स आर मेंट फॉर दोज पीपल जिन्हें एक्सेस नहीं है साबुन की, या कहीं मीटिंग में है या अचानक किसी से हाथ लग गया हो, कुछ हैंड शेक करा गलती से, तो आप तुरंत हाथ साफ। अब आप वहाँ पर वॉशरूम नहीं ढूंढ सकते बड़ी बिल्डिंग में पहले। सो बट अगर आप घर पे हैं या आप ऐसी जगह पे जहाँ है एक्सेस टू सोप वाटर, तो आपको हाथ धो लेने चाहिए। ये तो हैंडी लोगों के लिए कि जेब में रख दिया एक सैनिटाइजर, कभी भी कहीं भी यूज हो सकता है। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर टीपू। इट वाज अ ग्रेट इंफॉर्मेटिव सेशन जहाँ पे हम लोगों ने कोविड के बारे में, सेकेंड वेव के बारे में, वैक्सीन के बारे में एक्सटेंसिवली बात की। सो ऑन अ पार्टिंग नोट सर, आप कुछ बेसिक गिव अवेज देना चाहेंगे, टिप्स देना चाहेंगे जो लोग फॉलो करें सो दैट दे कैन बी सेफ इन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड? Well, all I would like to say is that follow all the guidelines and wear a mask properly. That's the most important. अगर आप मास्क पहनोगे religiously, अच्छी तरह से कवर करके, जो टाइटली फिट होता है फेस पे, जो चिन के नीचे, नोज के ऊपर हो, तो आप वो कोविड होने के चांसेस बहुत कम है। ये एक सबसे सिंपल चीज़ है जो आपको समझनी है और इसको फॉलो करना है। अगर हम ये नहीं करते तो सारे डॉक्टर्स इन्फेक्ट होते हैं। हम तो एक्सपोज होते हैं टू पेशेंट्स एवरी डे। सो हमें क्यों नहीं होता है? इसीलिए होता है बिकॉज हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं। अपार्ट फ्रॉम मास्क, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। अवॉइड कीजिए अननेसेसरी ट्रैवल, नॉन एसेंशियल ट्रैवल, बिकॉज फ्लाइट्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ईटिंग आउट, रेस्टोरेंट्स, अब आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, पब में जा रहे हो, ड्रिंक ले रहे हो या जो भी कॉफी पीने जा रहे हो, तो आप मास्क उतार लोगे नेचुरली। तो उसके साथ तो आप ना बात कर सकोगे ना खा पी सकोगे। सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, अवॉइड अननेसेसरी स्टफ। आपको काम पे जाना, आप मास्क लगा के जाइए और प्रिकॉशंस लीजिए। जब आप वापस घर आते हैं, प्रेफरेबली आपको कपड़े निकाल के धुलने के लिए दे दीजिए और कपड़े नहा के आप अपने साफ कपड़े पहनें। अगर आप ये अगले 2-3 महीने तक करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको कोविड होने के चांसेस बहुत कम है और आपके घर में भी सब सेफ होंगे। सो फॉलो द नॉर्म्स, wear a mask, and if you are eligible for the vaccination, there should be no sort of hesitancy. जो लोग 45 and above हैं, उन्हें तो सर्टिफिकेट्स भी नहीं चाहिए, उन्हें वैक्सीन लेनी चाहिए। जो भी वैक्सीन अवेलेबल है ले लीजिए। कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, दोनों अच्छी हैं, दोनों सेफ है, दोनों एफिकेशियस है और सूनर और लेटर यंगर लोगों के लिए भी होगा। सो वैक्सीनेशन एग्रेसिवली plus taking precautions, I'm sure, plus doctors, hey, government is doing its job, increasing the isolation beds, hospital beds. सब कुछ एक साथ करेंगे तो I'm sure we'll be able to get rid of this virus and be successful. Great. Thank you so much, Dr. Tipu, for joining us. Thank you. Thank you so much for inviting me. My pleasure.